Hello everyone, this is Jatin from gladtutor.com, and today we are going to talk about the objectives and functions of financial management. This is the part 2 of our financial management series. To watch our previous video about the nature and scope of financial management, check out the upper notification. So without wasting so much time, let's get started. So firstly, we will talk about the objectives of financial management. The objectives of financial management are classified into mainly two categories: the profit maximization and the wealth maximization. In the profit maximization, every business aims to increase their profits, and it is also an important aspect. The finance manager tries to achieve this aim, but by the management of finance, the firms can maximize their profit. The profit is determined through price factor, demand and supply, and if firm is getting enough profits through selling the product at the higher prices, it means they are achieving their aim. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है कि हर फर्म का एक एम होता है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, पर इनके लिए वो क्या करते हैं, एक फाइनेंस मैनेजर हायर करते हैं कंपनी में जो इनको हेल्प करता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में. पर फाइनेंस मैनेजर प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमाइज कर सकता है, पर वो एक शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है. लॉन्ग टाइम के लिए मैक्सिमाइज करना एक ईजी टास्क नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ भी सकते हैं और आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी बहुत है. सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन इज़ इट इज़ वेग इन नेचर, कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते. सेकंड वन इज़ द इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कोई इसमें इग्नोर करते हैं. एंड थर्ड वन इज द इट इग्नोर्स द रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी. सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स who are the owners of the organization. But by just giving the dividends to them is not enough. That's why the firm increase their share prices by through the net present value. And the net present value is the difference between the present value of benefits and cost. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है फर्म का, कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है. वेल्थ कौन होती है ऑर्गेनाइजेशन की? शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स भी कहते हैं. पर खाली उनको डिविडेंड देना ही इनफ नहीं होता, क्योंकि अगर हमें उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना है तो हमें उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना बहुत ज़रूरी है. और वो कैसे होगा कि जब हम उनका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उनका जो शेयर प्राइस होता है उसको इंक्रीज़ करेंगे. तो इससे कुछ टर्म्स होते हैं कि अगर फाइनेंशियल एक्शन पॉजिटिव एनपीवी दिखा रहा है तो उससे क्या होता है, वेल्थ बढ़ती है. एंड द फाइनेंशियल एक्शन डैट शोज द नेगेटिव एनपीवी, तो उससे क्या होता है, वेल्थ उनकी डिस्ट्रॉय होती है. एंड बिटवीन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जिसकी भी एनपीवी ज़्यादा होती है उसको अडॉप्ट करते हैं. एंड द एनपीवी ऑफ द फर्म should be additive in nature. NPV A plus B is equal to NPV A plus B. So now come to the, so you can better understood about the objectives through this diagram. So in this diagram you can see that there is a blue profits, there is a blue box which is written the profits or the net cash flow from operation. So you can see that in the left side there are some options. These are the options in which we use our profits, and in the right side there are some options from that we achieve the profits. So in the right side you can see that there we take short term sources of finance, long term sources of finance. From that we invest in the working capital or we invest in the long term assets, and from that profits we use for giving the dividends, for giving the interest to the debentures, and some amount we retain for the future investment. And these all things, the dividend distribution, the debt of obligation and the retained earnings helps in the wealth maximization, and all these things increase the value of the shareholders by increasing their share price. Now come to the functions of financial management. The functions of financial management are of just two types. The first one is the short term and the next one is the long term. In the short term finance function, the first decision is the liquidity decisions. तो liquidity decision क्या होता है, इसमें हम खाली अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. इसमें हम वो डिसीजन लेते हैं उन फंड्स के लेते हैं जो हमको डेली एक्टिविटीज़ में चाहिए होते हैं. जैसे हमको रॉ मटेरियल चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या हमको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं मटेरियल्स के, तो इसमें वो डिसीजन लेते हैं. लॉन्ग टर्म डिसीजन में तीन तरह के होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Investment decision is a long-term decision which includes the huge money and it also affects the future earnings.
बट इट इज़ आल्सो इरिवर्सिबल इन नेचर। तो इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होती है, पर इसमें दो चीज़ें होती है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और इसमें अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा होती है। पर इन कंपैरिजन टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अगर इससे प्रॉफिट होता है तो वो भी ज़्यादा ही होता है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसका, क्योंकि इसमें जैसे बताया कि रिस्क और अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। अगर उसके कंपैरिजन में हमको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है तो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इज द कट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उससे, ROI क्या है उसकी आपको मिलेगी। द थर्ड वन इज द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है, मान लो कि मैंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट करे आज, तो अगर वो मेरे 8 महीने में ₹1,00,000 पूरे हो जाते हैं, तो जो 8 महीने में मेरे पूरे हुए वो मेरा पे बैक पीरियड है। और जो बाकी का जो अब टाइम आए जिसमें मैं पैसे मेरे को मिलेंगे, अपना इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेरा पोस्ट पे बैक पीरियड होगा। So this is about the investment decision. Now come to the financing decision. Financing decision is the decision regarding the ratio between the debt and equity, and it is also known as the capital structure decision. The ideal debt ratio is 2:1. The financing decision क्या होता है कि हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें डेप्ट कितना लेना और इक्विटी कितनी लेनी है, और एक आइडियली रेशियो हमको डिसाइड कर रखी है फाइनेंस में कि 2:1 होनी चाहिए, कि हमें 2 डेप्ट लेना चाहिए और 1 रेशो इक्विटी लेना चाहिए। Now come to the next decision, that is dividend decision. The part of the profit that is given to the shareholders is known as the dividend, and that part is also known as the dividend ratio, and the rest part is known as the remaining ratio. कि जो हम प्रॉफिट का पार्ट शेयरहोल्डर्स को देते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और उसी पार्ट को एक हम डिविडेंड रेशियो कहते हैं, और जो रेस्ट पार्ट जो बच जाता है, जो हम क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट वो इंटरेस्ट के लिए देते हैं डिबेंचर्स को, जो कुछ पैसा हम रिटर्न करते हैं, उसको हम रिमेनिंग रेशियो कहते हैं। So this was about the functions of financial management. So there are also some basic functions which you can say that are the scope of financial management, which I have discussed in the previous video. That are the in this video I will just discuss in brief. If you want to know about detail about the basic functions, you can check out my previous video, and in the scope I have mentioned all the functions. The first one is the analyze the needs of finance. Firstly, you have to analyze what the needs of finance you have. आइदर यू हैव दिस लॉन्ग टर्म नीड्स और शॉर्ट टर्म नीड्स। तो पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आपको किस फाइनेंस की जरूरत है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, एज यू नो दैट द आइडियल डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। तो आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि कैपिटल किस प्रोपोर्शन में आपको फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टू आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या है आपकी। द थर्ड फंक्शन इज द सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर आपने अब सेलेक्ट कर लिया कि आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में कौन से फाइनेंस चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत तरह के होते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होता है, ट्रेड क्रेडिट होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें भी कौन सा चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर चाहिए, डिबेंचर चाहिए, क्या चाहिए। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज द इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब आप अगर लोन ले चुके हो तो अब आप उसको यूज़ कैसे करोगे, कि आप कि कितना फंड्स आप डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज़ करोगे, कितना फंड्स आप फिक्स एसेट्स में डालने के लिए यूज़ करोगे, कितना फंड्स आप टेंजिबल एसेट्स में डालने के लिए यूज़ करोगे। द नेक्स्ट फंक्शन इज द डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। और जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उससे आप कितना प्रॉफिट अपना आप डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दोगे, और कितना प्रॉफिट से आप अपना इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, और कितना प्रॉफिट आप रिटेन करोगे। एंड नेक्स्ट इज द कैश मैनेजमेंट, एंड वेयर द कैश विल बी यूज। आप कैश कहाँ यूज़ करोगे, फॉर द परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, payment of creditors, suppliers, etc. And the last function is the financial control, कि आप इसमें इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल कैसे करोगे, कि आपका ROI क्या होगा, ब्रेक एनालिसिस क्या होगा, कि रेशियो एनालिसिस क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल क्या होगा। ये चीज़ें इसमें वो करते हैं, चेक करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द objectives and functions of financial management. I hope you have liked this video. If you like it, make sure you like, and don't forget to subscribe our channel Glad Tutor, and turn on the notification button so that in future if we upload any video you will be notified. Thank you. Bye bye.